Hello everyone, let's talk about Chola dynasty in this video. So here in this video we will look all about the Chola dynasty. What was its locations, what was its administration कैसे होता था Chola dynasty का, then who were the kings and what were the peoples and how they were managing their administration, everything we will talk about the Chola dynasty. So basically from the image of the India's map, this map is not of a current year or a current date. It is of that time when Chola dynasty was flourish in India. So here you can say southern side of the India. Okay, so this region is flourished by the चोला डायनेस्टी. मतलब साउथ ऑफ द इंडिया का जो रीजन था वो ऑलमोस्ट चोला डायनेस्टी ने उसे लाइक कैप्चर करके रखा था. यहाँ पे चोलास के पावर चलते थे. सो हियर इन दिस वीडियो वी विल लुक एग्जैक्टली चोलास कौन थे, कहाँ से अराइज हुए थे. सी द फर्स्ट वेरी क्वेश्चन कम्स दैट Chola, how did Chola rise to power? See, basically in the starting कोई भी किंग पावरफुल नहीं होता है, पर धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, वो टेरिटरीज को एक्सटेंड करते हैं, अपने एम्पायर्स को बढ़ाते हैं, अपने किंगडम्स को इंक्रीज करते हैं. सो लाइक बेसिकली बाय स्लो एंड ग्रेजुअली दे बिकम्स द पावरफुल. सो सिमिलरली हैपन्स विद द चोलास dynasty also. So this Chola dynasty are a minor chiefly family known as the Muttayar held power in the Kaveri Delta. Why it is told Kaveri Delta? See, from the figure of the image, this map, you will be able to see that here is the flow of the river Kaveri, right? So you can see Chola dynasty पे एक river system, जो main river system था वो कावेरी था. Okay, and Kaveri is forming a delta over here. Delta means many rivers submerge or come together and just deposit their sedimentation here. Okay, and they just drain their water in the Bay of Bengal. So यहाँ पे क्या बन रहा है, एक delta बन रहा है. So here it is a formation of the delta, and this delta regions are very good for the agriculture. Right, so in the coming pages of this video you will come to know how the Chola dynasty were very good in the irrigations and the agriculture and all. So these Cholas were the minor chiefly family known as the Muttayar, held power in the Kaveri Delta, and they were the subordinate to the Palwa kings of the Kachipuram. Now who are what is known by the subordinate? Subordinate मतलब पहले वो चोलास के नाम से नहीं जाने जाते थे, पहले वो किसके पार्ट थे, पालवा किंग्स के ही पार्ट थे. बट उसमें से एक लाइक यू कैन से कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स निकल के आए एंड दे फॉर्म्ड देयर ओन डायनेस्टी, दैट इज चोला डायनेस्टी. यू कैन से उस पार्ट को हम सबऑर्डिनेट कहते हैं. Now Vijayalaya, who belonged to the ancient chiefly family of the Cholas from Urayur, captured the delta from the Muttayar in the middle of the 19th century. ये जो विजयालय था इसने क्या किया, ये chiefly family से belong करता था and Cholas family of the Cholas from the Urayur. See, Urayur is seen here in the map, so whatever the terms I am taking you can just observe from the map. Okay, this is Urayur and this is Tanjavur. So एक विजयालय था जिसने अपना लाइक ही वॉज बिलोंगिंग फ्रॉम द उरायूर एंड चोलास फैमिली एंड कैप्चर द डेल्टा. उसने कैप्चर कर लिया था. कैप्चर करना इन द सेंस वहाँ पे बस जाना या उस एरिया को अपने पावर में कर लेना. Now, Delta from the Muttayar in the middle of the 19th century, he built the town of Tanjavur and a temple of goddess Nishabusuddin there. ओके, सो उन्होंने क्या किया, विजयालय ने क्या किया, उन्होंने कैप्चर्ड किया उरायूर को एंड ऑल्सो तंजावुर में उन्होंने क्या किया, टाउन बिल्डअप किया. एंड बेसिकली यू नो मोस्टली जो किंग्स होते थे दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ बिल्डिंग द टेम्पल्स एंड द फोर्ट्स. ओके, सो टेम्पल्स एंड फोर्ट्स उनका बनाना लाइक उनको बहुत ये सारी चीज़ों का उनको बहुत शौक होता था. सो जो भी रेवेन्यूज आते थे दे जस्ट इन्वेस्ट टू द टेम्पल्स एंड द फोर्ट्स. सो सिमिलरली हैपन्स हियर ऑल्सो. जो विजयालय थे चोला डायनेस्टी से, उन्होंने क्या किया, टेम्पल्स बिल्ड किया तंजावुर में.
Now successor of the Vijayalaya, who are called as the successors? Successors are the like एक king है, उसके आने वाली जो generations होगी वो successors होगी, या उसके वो राजा के आने उसके बाद जो आने वाले राजा होंगे उसको हम सक्सेसर्स बोलेंगे. सो जो विजयालय के बाद जो किंग्स आए हैं, द सक्सेसर ऑफ द विजयालय कॉन्कर्ड नेबरिंग रीजन्स एंड द किंगडम ग्रो इन साइज. जी इसके बाद जो किंग्स आए हैं उन्होंने क्या किया, जो आजू बाजू के रीजन्स थे, हमने ये वाला रीजन्स देखा तंजावुर एंड उरैयूर एंड ऑल, राइट. सो इसके आजू बाजू के जो रीजन्स थे वो क्या किया, विजयालय के जो सक्सेसर्स थे उन्होंने कॉन्कर्ड किया, उन्होंने एनेक्स किया उस एरियाज़ को, नेबरिंग एरियाज़ को, एंड इस तरीके से उनका एम्पायर क्या हुआ, ग्रो हुआ साइज में एंड पावरफुल बना. नाउ पांड्या एंड द पल्लवा टेरिटरी टू द साउथ एंड नॉर्थ वेर पार्ट ऑफ दिस किंगडम्स. See, you will be able to see from this diagram, from this image of the map. See, Pandyas यहाँ पे है, right. So you can see that ki Pandyas and the Palvas are here only in the territory, और you can say कि जहाँ पे चोलास की डायनेस्टी थी उसके अंदर ही ये दो डायनेस्टीज भी थी. ये जो दोनों डायनेस्टी है वो काफ़ी छोटी डायनेस्टी थी as compared to the Chola dynasty. Now the thing comes कि सबसे पावरफुल रूलर कौन था. वैसे तो चोला डायनेस्टी को रन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा किंग्स आए, बट जो सबसे जाने माने जाते हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपने वक्त में पावरफुल थे या ज़्यादा डेवलपमेंट किया चोला एम्पायर्स का, दैट पर्सन वॉज द राजा वन. Okay, he was the most powerful Chola ruler who became king in 1985 and expanded control over most of this area. उसने काफ़ी ज़्यादा एरिया पे राज किया, and the king who was very famous or who was very powerful of the Chola ruler was known as the Raja. Now राजा का जो son है definitely वो भी king बनेगा in the coming generation. So Rajendra I is a son of the Raja, and Rajendra son ने भी कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं था कि ओनली उनके जो फादर थे वो ज़्यादा पावरफुल थे. इवन ही वॉज ऑल्सो वेरी पावरफुल बिकॉज वॉट ही हैज़ डन, ही हैज़ कंटिन्यूड हीज फादर्स पॉलिसी. उसने अपने पापा का ही पॉलिसी इंक्रीज़ किया, एनहांस किया, एंड गंगा वैली पर रेड किया, श्रीलंका को एनेक्स करने की कोशिश की. श्रीलंका अनेक्स करने की कोशिश इन द सेंस लाइक उनके टेरिटरी में एंटर होना, एंड उनकी ज़मीन या उनके लैंड्स को भी अपने टेरिटरी या अपने एम्पायर्स में शामिल करना. सो वैसे बहुत सारी कंट्रीज़ उन्होंने इस तरीके के ट्रिक्स आजमाए कि लाइक फॉर एग्जांपल साउथ ईस्ट एशिया के काफ़ी कंट्रीज़ पे उन्होंने क्या किया कि अपना टेरिटरी को एक्सपांड करने के लिए वहाँ पे रूल करना शुरू कर दिया, एंड वो एरिया डे बाय डे जैसे रूल करना शुरू करते थे, डे बाय डे फिर उस चीज़ों को वो अपने टेरिटरी में इंक्लूड करने लगे, एंड आफ्टर सम ऑफ द ईयर्स वो टेरिटरी उनके अंडर में आ जाती है, एंड वो उनका जो एम्पायर है वो इंक्रीज हो जाता है. एंड डेवलपिंग आर नेवी फॉर द एक्सपेंडिशंस, नेवी डेवलप हुई. राजेंद्र वन किंग के अंडर में नेवी डेवलप हुई. सी नेवीज एंड ऑल वेर यूज टू डू द फाइटिंग पर्पज, लाइक अगर कहीं से वाटर बॉडीज़ है, सो लाइक दे यूज टू गो फ्रॉम सी, लाइक अगर श्रीलंका है एंड इंडिया है, सो दे आर हैविंग द वाटर बॉडी बिटवीन दैम. Okay, so how to pass from the water body, so naval expeditions उन्होंने शुरू किया. Now we will see splendid temples in the bronze sculpture. See, Chola dynasty was very famous for its temples and the bronze sculptures. Now Chola dynasties were mostly हमने देखा कि जो kings होते हैं basically they build their temples and the forts. So similarly happened over here also. Big temples of Tanjavur and the Gangaikonda Cholapuram built by the Raja and the Rajendra are the architectural and the sculpture marvels. See, इसे marvels इसलिए कहा गया है because it was like splendid, बहुत ही ज़्यादा and बहुत ही creative, बहुत ही architectural full temples को build किया जाता था उस दौरान में.
and the Chola temples became the nuclei of the settlement. Why it is told that the nuclei of the settlement? Because अगर कहीं एक temple है तो definitely उसके आगे आगे आजू बाजू या neighboring में काफ़ी लोग बसने लगते थे, काफ़ी लोग का settlement होने लगता था, because the temple was giving the occupation to these peoples. Occupations in the sense like there were the persons who were the priest, there were the person who were the musician in the temple, there were the persons who were the dancers in the temple, there were the garland seller. ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स, जो बड़े बड़े टेम्पल्स होते हैं उनके आजू बाजू तो काफ़ी चीज़ें हमें दिखती है, सेल आउट होती है, तो वो लोग वहीं पे सेटल रहते हैं कहीं ना कहीं. सो दैट्स वाई इट इज़ टोल्ड दैट चोला टेम्पल्स ऑफन बिकम द न्यूक्लियर ऑफ द सेटलमेंट. एंड बेसिकली इट वॉज ऑल्सो वेरी फेमस फॉर द क्राफ्ट प्रोडक्शन. वहाँ के जो लोकल पीपल थे क्राफ्ट बना के वहाँ पे सेल करते थे टेम्पल के पास. The land of this went into maintaining all the specialists who worked at the temple and very often lived near it, like priests, garland makers, cooks, sweepers, musicians, etc. In other words, temples were not only places of worship, they were the hub of economic, social and cultural life as well. That's why टेम्पल्स को चोलास के टाइम में ये कहा जाता था कि नहीं, वो सिर्फ एक टेम्पल वर्शिप प्लेस नहीं है, वो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट का प्लेस है. नाउ सबसे ज़्यादा इस चोलास टेम्पल्स एरिया से सबसे ज़्यादा जो चोलास के ब्रॉन्ज इमेजेस है. सी दिस इमेज इज़ अ ब्रॉन्ज इमेज. This image is a bronze image and this was considered as the finest in the world. पूरे दुनिया में ये सबसे finest sculpturing था. एंड ये स्कल्पचरिंग मोस्टली डाइटीज़ एंड समटाइम डिवोटीज़ का बनाया जाता था. मोस्टली डाइटीज़ का रहता था बट समटाइम डिवोटीज़ का भी बनाया जाता था. Now coming to the agriculture system of the Chola dynasty. See, I have said you in the starting of this video that the Cholas empires, or from the map also you can see this is the map which is showing you the splendid temples जो इतने अच्छे बारीकी तरीके से आर्किटेक्चर किया गया है. So it's like amazing temple. See, from the map we have seen here we have seen that कावेरी डेल्टा, राइट. अगर वो डेल्टा है तो डेफिनेटली वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा. सो योर द मेन ऑक्यूपेशंस तो उनका टेम्पल्स के आजू बाजू जो लोग रहते थे वो कुछ प्रोडक्ट सेल करके या कुछ क्राफ्ट आइटम सेल करके अर्निंग करते थे. बट काफ़ी लोग ऐसे थे कि जो एग्रीकल्चर पे भी डिपेंड थे, बिकॉज जो कावेरी डेल्टा था इट वॉज लाइक वेरी फर्टाइल. इट इज़ टिल डेट इट इज़ वेरी फर्टाइल बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द रिवर सिस्टम. ओके, सो कावेरी ब्रांचेस जो थे इट इज़ small channel and वहाँ पे delta, if it is delta definitely it accumulates the sedimentation, and if there is a deposition of the sedimentation the soil will be very fertile, and अगर fertile soil है तो definitely it will provide the necessary moisture for the agriculture and particularly cultivating for the rice. So rice वहाँ पे बहुत ज़्यादा grow किया जाता था, and you can say that due to the rice or due to this agriculture system there is a flourishment of the agriculture over there. So from the 5th and 6th century at this area it is open up for the large scale cultivation. धीरे धीरे क्या होने लगा 5th and 6th century में एक large area तक वो cultivation करने लगे, and day by day चोला जो डायनेस्टी थी वो reach होने लगी, grow होने लगी, expand करने लगी अपने areas को. नाउ देर वेर सम इश्यूज़, और यू कैन से कि जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं होता था, सो लाइक इरीगेशंस जो थे वो आर्टिफिशियली भी किया जाता था, दैट इज़ इरीगेशंस के थ्रू. So some wells were dug, in other places huge tanks were constructed to collect the rain water. So it was not that कि कावेरी रिवर्स के वाटर पे ही डिपेंड होके वो एग्रीकल्चर करते थे, but there were some many other methods they have constructed artificially to do the agriculture, right? Now we will see the administration of that Chola dynasty. Now they were called as a settlement of the peasant. जो peasants थे, जो farmers थे, जो ग्रुप लाइक एक विलेज में जहाँ रहते थे उस एरिया को वो उर कहते थे. That area or settlement of the peasants were known as the ur.
नाउ बिकम प्रॉस्परस बाय द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर। जो ये फार्मर्स थे, ये जो पीजेंट्स थे, वो काफ़ी रिच होने लगे थे बिकॉज इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से चल रहा था वहाँ पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द गुड वाटर। नाउ ग्रुप ऑफ सच विलेजेस, जिस एरिया में वो रहते थे उस विलेजेस को, उस एरियाज को दे फॉर्म्ड अ लार्ज यूनिट एंड उसे नडू कहा जाता था। ओके, सो ऊर इज अ settlement of peasants and the Nadu is a village, or you can say the group of the villages formed over there is known as the Nadu. Now the village council and the Nadu perform several administrative functions including dispensing justice and collecting taxes. See, जो किंग्स होते थे उनका जो मेन रेवेन्यू होता था, जो मनी होता था, वो टैक्सेस के थ्रू ही आता था। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो नडूस थे एंड अदर काउंसिल मेंबर्स थे वो क्या करते थे, जस्टिस सिस्टम है या कोई कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कुछ झगड़े हो गए हैं गाँव में, तो उनको शॉर्ट आउट करना एंड वो कलेक्ट करते थे टैक्सेस वगैरह, एंड दिस वे दे वर जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिंग देयर village. Now, rich peasants of the Villala caste exercise considerable control over the affairs of the Nadu under the supervision of central Chola government. See, central Chola government में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन थे? Rich peasants of the Vela caste. Okay, ये ज़्यादा rich थे and they were exercising more their powers. The Chola kings gave some rich landowners titles like Movendevenals and Arayers etc. वो खुद को एक मतलब kings उनको titles देते थे। Now we have seen that ब्राह्मणस को जो लैंड गिफ्ट किया जाता था उसे ये कहा जाता, ब्रह्मदेय कहा जाता था। As a result, large number of उस वक्त में जो ब्राह्मण्स को लैंड गिफ्ट किया जाता था किंग्स के थ्रू, उसे ब्रह्मदेय कहा जाता था। एंड लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट इमर्ज इन द कावेरी वैलीज एज इन अदर पार्ट ऑफ द साउथ इंडिया। सी, ज़्यादा जो ब्राह्मण्स लोग थे वो कावेरी वैली के पास ज़्यादा सेटलमेंट थे बिकॉज इट वॉज लाइक एरिया की जहाँ पे टेम्पल्स काफ़ी ग्रो था वहाँ पे। So each Brahmadev were looked after by an assembly or sabha of prominent Brahmana landowners. This assembly worked very efficiently. These decisions were recorded in details in inscriptions. Okay, so ये जो ब्राह्मण्स थे ये क्या करते थे, ये इंस्क्रिप्शंस लिखते थे। इंस्क्रिप्शंस लिखना मतलब चोला डायनेस्टी का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कौन से किंग ने ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, कौन सा किंग ज़्यादा पावरफुल है। सो एवरीथिंग A to Z, like they were carving, even they were writing on the stone walls of temples, and association of traders known as the nagarams also occasionally perform administrative functions in the terms. So ब्राह्मण्स क्या करते थे, इंस्क्रिप्शंस लिखते थे, बुक्स लिखते थे या कोई चीज़ पे लिखते थे। एंड एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स, डिफरेंट जो ट्रेडर्स थे उनका जो एसोसिएशन था, ग्रुप था, उसे नागाराम्स कहा जाता था। एंड वो ये जो नगरम्स थे, ट्रेडर्स के जो ग्रुप थे, वो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में एक अपना रोल प्ले करते थे। सो यू कैन से दैट ब्राह्मण्स भी एडमिनिस्ट्रेटिव में अपना रोल प्ले करते थे एज वेल एज द ट्रेडर्स भी अपना रोल प्ले करते थे। नाउ inscriptions from Uttamarur in Chigleput district, Tamil Nadu provide detail the way in which sabha was organized. See, inscription ब्राह्मण्स के द्वारा जो inscriptions लिखी गई है उससे हमें ये पता चलता है कि पास्ट में या हिस्टोरिकल टाइम में सब सिस्टम कैसे था, बिकॉज कहीं ना कहीं लिखी होगी चीज़ें, दैट्स व्हाई वी आर रीडिंग नाउ, राइट। सो यू कैन सी दैट कि सभा ऑर्गेनाइज किया जाता था, एंड सभा वॉज हैविंग द डिफरेंट कमिटी टू लुक आउट द इरीगेशन वर्क, गार्डन वर्क, टेम्पल वर्क। फॉर एग्जाम्पल यू नो लाइक इन इंडिया करंटली हमारे पास क्या है, मिनिस्टर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, ऐसे बहुत सारे मिनिस्ट्रीज है, राइट। सिमिलरली चोला डायनेस्टी में क्या थी, बहुत सारी सभा थी एंड दे वर हैविंग द कमिटीज, एंड कमिटीज were given the titles, like अगर टाइटल उनका है इरिगेशन वर्क तो उनको सिर्फ इरिगेशन वर्क देखना है, राइट। एंड इफ द टाइटल इज गार्डन्स, टेम्पल्स और एनी अदर वर्क तो उनका वो कमिटी बन जाता था एंड दे हैव टू लुक देयर सब्जेक्ट, राइट। नाउ जो एलिजिबल मेंबर्स थे कमिटी की, वो कैसे सिलेक्ट किया जाता था, वो एक पाम लीफ पे लिखा जाता था उनका नाम,
एज अ टिकट बनाया जाता था एंड उसको एक अर्दन पॉट में रखा जाता था, लाइक एक अर्दन पॉट में उसे सारे चिट्ठियों को डाला जाता था एंड यंग बॉय को बोला जाता था कि उसमें से नेम्स निकालने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर उनको इरिगेशन वर्क के लिए नेम्स चाहिए तो वो एज अ चीट के बेसिस पे वो नेम्स सिलेक्ट करते थे एंड वो कमिटीज़ उनको अलॉट करते थे. सो दिस वॉज सम ऑफ द थिंग्स विच इज़ डन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एट द चोला पीरियड ऑफ टाइम. I hope so you got this, and here we are ended with the chapters. The video of the first part, this was the second part. The starting of the chapters video is already uploaded. I will provide you the link in the description box and you can watch it from there. Thank you.